Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Gautam Gulati, who is currently seen on the web show Operation Cobra, got into a candid chat with us where we asked Gautam about his career, where he was missing and more. So starting up, tell us where was Gautam after Bigg Boss? जी क्या है after Bigg Boss I got into a couple of contracts where I signed up with Ekta Kapoor for a 3-movie deal and then I did Azhar and then I did Behan Hogi Teri and then after that I took a break because you know my part was not that great in there and then I had to focus more on coming up as a hero. Then it took me a lot of time to come back as a hero and then I signed up Operation Cobra, which is out now. So basically I started shooting for this in 2017 February. So now you can see like it is released and touch wood I'm really happy that चाहे थोड़ा वक्त लगा पर कोई चीज़ अगर जो कि बहुत क्वालिटी वाली और बहुत अच्छे से उसकी प्रेजेंटेशन आई है and I'm just feeling happy about it. Was it conscious to stay away from work? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. मेरा बस चलो तो मैं कल आ जाऊँ यार स्क्रीन पर. कौन पागल है जो मना करेगा कि अगर आपको suppose somebody is offering you a crore or two like okay सर आप इतना ले लो या इतना ले लो तो आप उनको बोलो okay नहीं यार you know I can't take this. You know कोई भी business के लिए मना नहीं करता है इंसान. कोई भी मना नहीं करता है. The thing is कि कहीं और साइन किया हुआ है. अब वो अगर काम कहीं और साइन किया हो तो at the same time you cannot pick up something else. Then you're not professional enough to work with those people. So this is why I had a lot of craving also. Like okay I need to pick up work with them कि इनके साथ भी कर लेता हूँ. I couldn't do it. So then I had to stick to my words to the people who I was working with. Now finally it is releasing and this is another movie which I'm shooting for. Today is the last day for the shoot. After Bigg Boss, people had a lot of expectations of your comeback, but you didn't take up anything. उस टाइम का सोचो अगर अभी यही चीज़ अभी उस टाइम पे अभी चल रही होती राइट 6 महीने बाद 8 महीने बाद तो अलग बात होती बट कोई भी ज़िंदगी में काम स्ट्रेट अवे ओवरनाइट नहीं होता स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू स्ट्रगल दैट ओवरनाइट नथिंग कुड हैपन फॉर यू बिकॉज यू नो आई बिकेम अ स्टार इन टेलीविजन बट नॉट अ स्टार इन फिल्म्स सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्ट्रगल because if a producer is spending 10 crores on you 15 crores on you for their film or even if they are making a web series like that how we made so it takes time not overnight they will be able to believe someone who is in a reality show or a reality show winner or no matter how famous you understand my point of view so but they didn't know about my television journey also that I have been working in television as well since 7-8 years before Bigg Boss. So they only knew about Bigg Boss कि okay this guy just got famous over here. तो एकदम से वो आप पे बिलीव करके आपके ऊपर इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते. अगर मैं आपसे भी बोलूँगा 5 मिनट के लिए कि okay you can you give me 10,000 rupees? Will you be able to give me? You'll be like यार 10 बार सोच लोगे आप. तो imagine if a big producer has to spend 10 crores on you, कितना tough होता होगा उन लोगों के लिए. So they will take someone like Varun Dhawan, they will take someone like Ranveer Singh and then because they know if they're spending 15-20 on them they're gonna get back with 35 they're gonna get 40 or maybe 100 crores. It's business. Did you find yourself incapable of things? मुझे तो लगा था कि हो सकता है शायद आना ही ना हो मेरा वापस और बोलो मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद हो सकती है रिस्क तो लिया तूने बहुत बड़ा बट कोई बात नहीं चल एंड तक लेते हैं तो माई थिंकिंग इज़ लाइक दैट मैं डरता नहीं हूँ कि आई रिमेंबर जब मैं टीवी शो कर रहा था स्टार प्लस का तो स्टार प्लस इवन द प्रोडक्शन हाउस स्टार्टेड टेलिंग मी कि यार व्हाई यू लीविंग एंड स्टफ व्हाई यू गोइंग फॉर बिग बॉस एंड तो मैंने कहा मैं रिस्क लेना चाहता हूँ मैं देखना चाहता हूँ कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ लाइफ में कि इससे क्या हो सकता है कि कुछ चेंजेस लाना चाहता हूँ लाइफ में कुछ रिस्क लेते हैं बहुत जगह से मुझे वो सब चल रहा था मेरा कि हाँ मैसेजेस आ रहे थे लोगों के डरा रहे थे जो भी 4 चीज़ें होती हैं आई सेड आई डोंट केयर मैं छोड़ रहा हूँ वो रणवीर सिंह की मूवी में भी डायलॉग है ना कौन सा गाने में तू नंगा ही तो आया था
क्या घंटा लेके जाएगा? तो मैं सीरियसली लेने लग गया हूँ, मतलब ऐसी चीज़ों को कि मैं डरता नहीं हूँ लाइफ में, कभी भी नहीं. सो आई बिलीव इन टेकिंग रिस्क. आई बिलीव कि रिस्क लो, आगे बढ़ो, और अगर नहीं भी आगे बढ़ते तो एक चीज़ याद रखना, दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो अहेड इन लाइफ बिकॉज यू नो हाउ टू टेक अ रिस्क. Was there a pressure of coming back with a bang? कोई प्रेशर नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, मैं तो सोचता ही नहीं हूँ इस चीज़ में. मैंने कभी इतना ज़्यादा सोचा नहीं कि यार कि मुझे कि मेरे सर पे प्रेशर है. स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ मुझे. लॉट ऑफ पीपल दे सारी टेलिंग मी, यार यू नीड टू साइन राइट नाउ, यू नीड टू साइन राइट नाउ, यू नीड टू साइन अभी अभी अभी. पर ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है. अगर आप ओवरनाइट सोचोगे कि every person of each and every country they want to become an actor, if you see, तो ओवरनाइट उनके चाहने से वो थोड़ी ना हो जाएगा. उसके लिए कई साल लगाने पड़ते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है. उसके बाद जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके यू गेट वन पोजिशनिंग, यू गेट वन प्रोजेक्ट, एंड देन इफ यू प्रूव योर सेल्फ इन दैट प्रोजेक्ट देन यू गेट समथिंग. ओवरनाइट थोड़ी ना मिल जाएगा. तो मुझे पता था स्ट्रगल इज ऑन द वे. सो आई न्यू इट, यार ये हज़ारों लोग दोस्त तो बनना चाह रहे हैं, आ रहे हैं अभी, बट मैं कुछ साइन नहीं करने वाला हूँ अभी. मुझे पता था कुछ मुझे डिसेंट लगेगा विद अ गुड कॉर्पोरेट हाउस, विद अ गुड बैनर, देन आई विल बी एबल टू से येस इफ द स्क्रिप्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिसेंट. यू नो, बहुत ज़्यादा चूजी भी नहीं हो सकते बिकॉज बिगिनिंग में कुछ तो अच्छा पिक करना है. तो देन आई पिक्ड अप दीज टू प्रोजेक्ट्स, द वन विच आई एम शूटिंग फॉर राइट नाउ एंड द वन ऑपरेशन कोबरा जो अभी रिलीज़ हुआ है 15 फरवरी को. तो मैं अंदर से खुश था कि चलो दो अच्छे बैनर के मैं कुछ शूट कर रहा हूँ जो कि इट इज़ गुड क्वालिटी वर्क एंड इसकी प्रेजेंटेशन मार्केट में अच्छी होगी. अब आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन भी अगर आप देखें तो दे हैव डन ग्रेट प्रमोशंस फॉर ऑपरेशन कोबरा एंड इट इज़ कमिंग आउट नाइस एंड पीपल आर लाइकिंग इट ऑल्सो. लाइक लॉट मेनी पीपल आर मैसेजिंग मी, यू नो, that you have done a great job and people are liking it. So something like that I always wanted to do. When you were in London for preparations, tell us about that process. See, basically, I just, when I was shooting for this Operation Cobra, so I had joined military, which even till today, I have joined, and I'm, you know, whenever I go back to London, I have set up a company over there called Style by Gigi. So basically, I've signed up with a couple of brands, clothing brands, and yesterday only signed up with the hair product brand also. So I'm coming up with something which I like. So I'm presenting all those brands over here in India. So I was making a presentation of all that as well. But at the same time, when it comes to Operation Cobra, so I needed a lot of training. तो जैसे मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, उसके लिए एक साइकिल ट्रेनिंग होती है वहाँ पर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर. साइकिल की ट्रेनिंग पर भी मैं रेगुलर जाता था. इवन टिल टुडे आई गो. मुझे उसकी ऐसी आदत लगी कि मैं आज तक उसकी ट्रेनिंग करने जाता हूँ, अभी तक जाता हूँ. और एक बूट कैंप ट्रेनिंग है, उसमें भी आप अगर 1 घंटा चले जाओ ना तो आप पहली बात तो बाहर नहीं निकल सकते वहाँ से. तो इट्स सो टफ कि यू हैव टू मेक योर माइंड दैट इवन इफ दे टेल यू लाइक आप अपने आप को यहाँ तक लेके आ जाओ, बस रेस्ट हम पे छोड़ दो, हम संभाल लेंगे. एंड एक्चुअली में इट्स सो टफ कि मुझसे थक जाता था बीच बीच में कि यार, बट फिर सोचता था यार हार नहीं माननी, नो मैटर व्हाट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग. सो आई पिक्ड अप मिलिट्री ट्रेनिंग, आई पिक्ड अप द साइकिल ट्रेनिंग, आई पिक्ड अप द बूट कैंप ट्रेनिंग. सो वो सब करता हूँ रेगुलरली. इवन आज तक इवन काम हो चुका है, कंटिन्यूटी इज कोई स्टिल मुझे उसकी आदत लगी है इतनी अच्छी कि यार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखने को मिले ना तो वो करो. अब सपोज कल को मुझे, अब जैसे आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी उरी, तो उसमें उरी में पूरी बूट कैंप ट्रेनिंग है, सब कुछ सोल्जर्स जिस तरीके से पूरी बूट कैंप पर यू नो हाउ एक्टिव दे आर, हाउ दे फाइट एंड स्टफ. तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट. अब मुझे कल को कोई सोल्जर का रोल मिले या कभी कोई मुझे ट्रेनिंग उस तरीके की करनी हो, सो आई एम, to be honest, I'm strong enough to get into boot camp training, and whatever they say, I can do it straight away. And you'll still continue it? Of course, I still do it. Whenever I go, 9 o'clock, वहाँ 9:03 पे भी नहीं पहुँच सकते आप. 9 बजे सुबह पहुँच, या तो 7 बजे की क्लास होती है, एक 9 बजे की क्लास होती है, उसके बाद नहीं क्लास होती, या फिर एक शाम की 6 बजे की क्लास होती है. तो मैं 9:03 पे एक बार मुझे याद है मैं चला गया था
उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया आने से। तो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा मैं अग्रेसिव हो गया था। मैंने कहा यार इन्होंने मुझे अलाउ क्यों नहीं किया, 3 मिनट ही तो बढ़े हैं सिर्फ। तो मैंने मैम से दोबारा रिक्वेस्ट किया, मैम कैन आई कम इन, लाइक शी लाइक सॉरी। तो मैंने कहा ओके। तो व्हाट आई डिड वाज द प्लेस वेयर दे वर टेकिंग द क्लास, just next to it I kept doing the training so that I do the same thing, and I feel today I did not waste my day, and I kept doing the same thing and even better training than them. They did training for 50 minutes, I did for almost 1.5 hours, and I kept doing it, and they were going also. I said okay, all right, you know, so just to let them know that I'm strong enough. Your training also cannot stop me now, though they have made me that strong, but still it worked for me that today if you say 2 hours I will not stop. What kind of roles are you looking for? Now वही मैं उस चीज़, अब जैसे ये जो प्रोजेक्ट है जो हम शूट कर रहे हैं, दिस इज़ टोटली अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, और ये पाइपलाइन में प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। इसका 1-2 गाने इसके हमारे रह गए हैं। जैसे आज का एक सीक्वेंस है, तो ये कंप्लीट करने के बाद फिल्म रैप अप हो जाती है। इसके बाद हम डबिंग स्टार्ट कर देंगे, देन प्रमोशनल सॉन्ग जो भी शूट होगा, सो वी आर गोना स्टार्ट ऑल दैट। बट उसके बाद बेसिकली आई फील कि एनीथिंग विच इज़ इम्पैक्टफुल, लाइक सी आई एम नॉट इन अ रश, यू आई एम श्योर यू नो दैट अबाउट मी कि आई एम नॉट इन अ रश। मैं रिस्क लेने में बिलीव करता हूँ भैया कि चलो अलविदा भी बोलना पड़ा तो बोल दूंगा, बट मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं फिर एक बार कहीं ना कहीं से आई विल पॉप इन, यू नो, समहाउ समडे, बिकॉज आई एम नेवर गोना स्टॉप। एक एक्टर को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि उसका माइंड कहीं ना कहीं चलता रहता है कि यार कुछ ना कुछ मुझे अपने टाइप का करना है। सो एनीथिंग which I feel which will come in front of me, like something which will be impactful or something which I like, straight away I will pick it up and I'll come on board with those people. Are you open for TV? टेलीविजन में if something I don't mind doing television, but अगर मुझे कोई suppose बहुत अच्छा ऑफर आया टेलीविजन से, like suppose hosting, you remember that show which I hosted, MTV Big F with Gautam Gulati? So something like that, if it is gonna come my way, I'm gonna pick it up. People think that you are now away from television or away from, you're doing it to Bollywood, तो कहीं ना कहीं you offers restricted हो जाते हैं, या audience maker or the producer think that no, he is into films, He might be not he really might be not, तो ऐसे कुछ नहीं, ऐसे मुझे आज भी बहुत प्रोड्यूसर्स के मैसेजेस आते हैं, और दे टेल मी भाई करेगा करेगा, तो मैं कहता हूँ सर कुछ कम टाइम वाला हो, जिसमें थोड़ा कम टाइम लगे, 25 दिन ना हो महीने के, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मैं आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता इन फ्यूचर। तो कम टाइम वाला मुझे चलेगा। जैसे समथिंग अभी जैसे मुझे कलर से फ़ोन आया कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझे एक शो ऑफ़र किया, तो मैंने उनको बोल दी, मैंने कहा शो नहीं कर सकता मैं, इसमें 25 दिन चाहिए होते हैं आपको, 1 आध 2-3 साल तक, कांट गिव माई टाइम, बिकॉज मुझे आई नीड समथिंग जिसमें मैं सपोज, मैंने कहा मेक समथिंग लाइक 24, that show of colors 24, and I'll come on board straight away. You give me something like that for 2 months, 3 months, straight away I'll come on board, but cannot come for 3 years straight away. It's a bit difficult for me. Are you settled in London or Mumbai? No, I stay here also, I stay in London also, I stay in Delhi also. अब जैसे अभी दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी आज 5 बजे की सुबह की फ़्लाइट है, तो थोड़े दिनों के लिए दिल्ली, फिर उसके बाद जब बीच में कंपनी का कुछ काम करना पड़ेगा मुझे अपनी, तो वैसे है आई हैव 2-3 पीपल ओवर देयर हैंडलिंग माय वर्क, बट देन समटाइम्स आई आल्सो हैव टू शूट फॉर द ब्रांड, बिकॉज क्लोथिंग ब्रांड, सो समटाइम्स द ब्रांड दे टेल मी लाइक, you know, if you're the face, so you need to shoot for it too sometimes, but it is my mind now that I don't have to be available full time for the shoot. I should hire models, they should wear the clothes and stuff. It's very exclusive. The brands which are working with me are very exclusive, so they could wear the clothes and stuff, and you know, they could manage like that, so I don't have to be available. So basically I'm in Bombay only. Are you in touch with ex Big Boss contestants? नहीं, ओनली पुनीत जी। जो होता है अंदर वही होता है बाहर, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ आई डोंट नो। अभी मैंने बीच में कोई स्टेटमेंट देखी, किसी ने बोला कि स्क्रिप्टेड है, तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा यार ये लोग कहाँ से आते हैं, कौन बनाते हैं
ऐसी बातें जो लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए. इट्स नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल. इट्स अ वेरी टफ शो. एंड लाइक आई सेड कि मैं पुनीत जी से ही टच में हूँ तो सिर्फ पुनीत जी से ही टच में हूँ और किसी से भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट. प्रीतम से अभी बीच में मैं रेडियो पर इंटरव्यू देने गया था तो मेरी उससे हाय हेलो हुई. ही सेड हाय हेलो नाइसली एंड यू नो आई वाज टॉकिंग टू मलिश्का. तो मलिश्का का फ्रेंड है प्रीतम. दैट्स हाउ यू नो he messaged me on Twitter. I messaged him back. I believe be kind is not is good to be nice to everyone, you know. Lastly, a message to all your fans. Oh yeah, I know. Since how long you guys have been waiting. Anyway, to all the viewers, I'm really sorry अगर आप मुझे बीच में काफ़ी टाइम तक देख नहीं सके, पर अब आप definitely देख सकते हैं. All you need to do is just go on Eros now, subscribe Eros now, and you'll be able to watch Operation Cobra. And I hope you like my work, so please don't forget to watch me over there. Alright, God bless you, take care of yourself, I love you all. Hi, this is Gautam Gulati and you are watching me on India Forums. We hope that you enjoyed this chat with Gautam. If you did, do comment and tell us. Ashima Chawla, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.